Hello everyone. Today I will discuss about anthropometry measurement. First we will start with definition of anthropometry measurement. Here first we have to understand the meaning of anthropometry measurement. Anthropometry measurement is the study of human body measurement. अब हमें यहाँ पे यह समझना होगा कि एग्जैक्टली एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है क्या। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट का मतलब सिर्फ बॉडी पार्ट का मेजरमेंट लेना, बल्कि एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट क्या है? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट. The key word of this definition is study. But we generally neglect this word, and what we understand anthropometry measurement is the only measurement of human body part. But anthropometry measurement is what? Anthropometry measurement is the study of human body part. Example, suppose if you are measuring head circumference, at the end during the birth, if you are measuring head circumference and your finding is 32 centimeter, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओनली 32 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस लेके उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ये है कि बॉडी पार्ट का मेजरमेंट लेना है. बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन anthropometric measurement? After the measurement we have to reach to the conclusion. हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है कि आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट जो हमारा मेजरमेंट आया, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट जो बेबी है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मलिटी है. अगर एबनॉर्मलिटी है तो कौन सी एबनॉर्मलिटी है. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसका अकॉर्डिंग टू द एज उसका जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिले तो नहीं है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो नहीं है. ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है. अगर मेजरमेंट के बाद में वो चीजें जब फाइंड आउट होती तभी हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट का, दैट वी कैन achieve. Otherwise there is no use of taking the measurement. सिर्फ मेजरमेंट लेना इम्पोर्टेंट नहीं, मेजरमेंट लेने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचना ही जो इसका मेन मोटो मेन ऑब्जेक्टिव है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का वो है. तो इसलिए यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है? द टर्म एंथ्रोपोमेट्री डिफाइन द स्टडी ऑफ ह्यूमन measurement. Here the meaning of study means we have to study the measurement what we have find out, और find out करने के बाद में at the end we have to reach to the conclusion. हमें conclusion पे पहुंचना होगा. on the basis of the conclusion हम exactly पता कर सकते हैं कि क्या problem है. So it was all about the definition of anthropometry measurement. Next we will discuss about parameters of anthropometry measurement. The parameters of anthropometry measurement it include weight, height, mid upper arm circumference, head circumference, chest circumference. First we will discuss about head and chest circumference. So first we will see how to measure head circumference. First we have to understand what is the head circumference. Head circumference is determined by measuring the greatest occipitofrontal circumference, and that is from the occipital prominence to the frontal prominence. Whenever we measure head circumference, that time we have to consider that head circumference should be taken with measuring tape, and that tape should not be cannot stretch. उससे क्या होगा कि जो exactly जो हमारा head circumference है, that we can not find out. So how we can measure the head circumference? First, we have to wrap the tape around the widest possible circumference, from the most prominent part of the forehead to the widest part of the back of the head, in back of the head. और उसके बाद में जो हमारा मेजरमेंट होगा, and that measurement will be a head circumference. The next important part of the head circumference is we have to know what is the normal head circumference and what is the abnormal head circumference.
And for this table is very important for understanding about the normal head circumference and the growth of normal head circumference. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एट बर्थ जो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो होगा 33 टू 36 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे ये पता होना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस की रेंज क्या है। सपोज after taking the measurement, if you are getting the reading of the measurement is 27 or 28, और जब तक आपको यह नहीं पता है कि what is the normal range of head circumference, you cannot predict about the abnormalities of the baby. तो abnormality को find out करने के लिए you should know about the normal range of head circumference। और after birth जो उसका नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस है, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस पता होने के बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेड सर्कमफ्रेंस की जो रेंज है उस रेंज के अंदर या जो हेड सर्कमफ्रेंस की जो रीडिंग है उस रीडिंग के अंदर नॉर्मल ग्रोथ कैसी होती है। सपोज एक बेबी है, उस बेबी की ड्यूरिंग द बर्थ आपने जब उसका हेड सर्कमफ्रेंस चेक किया तो इट वाज अराउंड 34 सेंटीमीटर एंड आफ्टर 6 मंथ इट वाज 39 सेंटीमीटर। ओके, तो during birth it was 34 and after 6 months it was 39। तो यहाँ पे जो 6 मंथ में जो ग्रोथ हुआ है बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस में वो दैट इज ओनली 9 सेंटीमीटर है, 34 से 39। तो 9 सेंटीमीटर आफ्टर 6 मंथ उसकी ग्रोथ है, तो वो क्या ग्रोथ उसकी नॉर्मल ग्रोथ है या एबनॉर्मल ग्रोथ है, या नॉर्मल से ज्यादा है या नॉर्मल से कम है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको ये जो कुछ रूल्स हैं दैट यू हैव टू नो। जो नॉर्मल ग्रोथ होती है फ्रॉम 0 to 3 months, from 0 to 3 month it will be 2 centimeter a month। means suppose at birth it was around 34 centimeter, means after 1 month there should be 2 centimeter का ग्रोथ, वहां पे 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ एटलीस्ट होना चाहिए। तो 34 से तो हमारे जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होगी वो क्या होगी 34 प्लस, क्योंकि 34 यहाँ पे क्या है, सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमने एट बर्थ मेजर किया है that time it was the head circumference was 34। तो यहाँ पे हम 34 एक कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो 34 है तो आफ्टर 1 month it should be around 36, then after 2 months it should be around 38 and after 3 months it should be around 40। and the next rule is from 4 months to 6 months the growth of head circumference should be around 1 centimeter a month। means after 4 months it will be around 40 plus 1 41, then after 5 months plus 1 42 and after 6 months around 43। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है ऑफ द हेड सर्कमफ्रेंस इट शुड बी अराउंड 43 सेंटीमीटर। जब हमने फाइंड आउट किया वो क्या है 39, मींस जो आइडियली उसका ग्रोथ होना चाहिए था वो टिल 43 सेंटीमीटर तक होना चाहिए था, बट जो एक्चुअल में जो बेबी का ग्रोथ हुआ है वो कितना है 39, मींस 4 सेंटीमीटर का जो ग्रोथ है बेबी का वो क्या है कम है। तो यहाँ पे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि जो बेबी की जो ग्रोथ है हेड सर्कमफ्रेंस की ग्रोथ है वो लेस देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस है। इट मींस कहीं ना कहीं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ये चीज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then the next rule is 6 to 12 months the growth of the head circumference will be around 1.5 centimeter a month। means 6 महीने के बाद में जो बेबी की ग्रोथ होती है वो मंथली बेसिस के हिसाब से आप देखें तो 0.5 सेंटीमीटर की ग्रोथ होती है। तो मीन्स टिल 1 ईयर जो बेबी का ग्रोथ हो जाएगा, जो हमने कैलकुलेशन एग्जांपल लिया है 34 अगर हम कंसीडर करें बेबी का बर्थ के टाइम पे हेड सर्कमफ्रेंस, तो आफ्टर 1 ईयर वो कितना होगा 40, देन 43 प्लस 3 46 सेंटीमीटर, और 1 to 2 ईयर्स में जो बेबी का ग्रोथ होता है वो 2 सेंटीमीटर ईयर। मीन्स 43 प्लस 3 46, तो अराउंड 48। तो बेबी की जब एज 2 ईयर्स तक की हो जाएगी, 2 ईयर्स तक का बेबी का जो हेड सर्कमफ्रेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 48 सेंटीमीटर। अगर सपोज ये बेबी का
head circumference during birth was 34. ओके, तो हम एक कैलकुलेशन लेके हमने देखा तो कितना ग्रोथ होना चाहिए। तो आपको इस बेसिस पे पता होना चाहिए कि बेबी की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर आपको एबनॉर्मलिटी के बारे में नहीं, नॉर्मल रेंज के बारे में नहीं पता, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द एबनॉर्मलिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द नॉर्मल रेंज ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस ड्यूरिंग बर्थ and the rules of normal growth of head circumference. So it was all about the head circumference. Next, we will discuss about chest circumference. First, you have to understand what is the chest circumference. Chest circumference is the circumference at the fullest part of the chest region or breast region. जो chest region और breast region होता है उस fullest part, ऐसा नहीं कि आपने inhale किया है और inhale करने के टाइम पे आप head circumference दे रहे हो। तो जो fullest part होता है chest का, उसका जो अराउंड द निप्पल जो सर्कमफ्रेंस होती है उस सर्कमफ्रेंस को हम चेस्ट सर्कमफ्रेंस करते हैं। एट बर्थ चेस्ट जो नॉर्मल रेंज है एट बर्थ चेस्ट सर्कमफ्रेंस की वो 30 to 33 सेंटीमीटर होता है। और जैसा कि मैंने आपको हेड सर्कमफ्रेंस में बताया जो नॉर्मल रेंज होती है 33 to 36 सेंटीमीटर होता है। अब हियर यू हैव टू नो वन थिंग, द डिफरेंस बिटवीन चेस्ट सर्कमफ्रेंस and head circumference in newborn baby. A newborn head is usually 2 centimeter larger than chest size. तो जो बेबी का जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है वो हेड सर्कमफ्रेंस से 2 सेंटीमीटर कम होती है। मतलब जो हेड सर्कमफ्रेंस हो गया उसकी जो साइज होगी वो जनरली अगर कंसीडर की जाए तो 2 सेंटीमीटर ज्यादा होती है हेड सर्कमफ्रेंस से। or between the 6 to 12 months, 6 to 2 years, the chest circumference and head circumference दोनों की जो साइज होगी वो इक्वल होती है। and after the 2 years the size will become larger, the size of the chest circumference will become larger than head circumference. तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ड्यूरिंग द बर्थ जब बर्थ होता है तो न्यूबॉर्न बेबी का जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होती है हेड सर्कमफ्रेंस से जनरली। और 6 to 2 years, बिटवीन द 6 to 2 years जो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस होंगी वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। और जो आफ्टर 2 years जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है उसकी साइज हेड सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होने लगती है। अब यहाँ पे हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों को जब मेजर करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है वो यह है कि ड्यूरिंग द बर्थ इफ the chest head is more than 4 centimeter larger than the chest circumference. If suppose the chest circumference is 30, okay, and head circumference is 4 centimeter larger than chest circumference 34, it means there will be a probability of hydrocephalus. अगर normal जो difference होता है chest circumference और head circumference में वो होता है 2 centimeter का, अगर वही difference more than 4 centimeter और more than 4 centimeter है, it means it can there will be a probability of hydrocephalus. The next thing, if the head is smaller than chest circumference, it means there is a probability of microcephaly. So it was all about the chest circumference. Next, we will discuss about mid-upper arm circumference. In mid-upper arm circumference, we will first we will discuss how to measure with mid-upper arm, measure mid-upper arm circumference. For measuring mid-upper arm circumference, you have to follow some steps. And the first step is bend the left arm in 90-degree angle to find the mid of the arm. जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर, इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट आर्म है उस लेफ्ट आर्म को आपको 90 डिग्री एंगल पे रखना है। ओके, देन सेकंड स्टेप इज कीप द हेड ऑफ द मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस टेप। ये आप जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस टेप इज नोन एज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस टेप। On the top, align the marker 0 centimeter, incline with topmost part of hand as shown in the image. Okay, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं,
वर्टिकली आपको जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस टेप है उस टेप को आपको लेना है, और टेप का जो अपर पोर्शन होगा जिसमें मार्किंग 0, जैसे कि आप यहाँ पे दो एरो देख सकते हैं, ये दो एरो को हम मार्किंग 0 कंसिडर करते हैं। इस एरो को आपको, आप जब अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर एक बोनी प्रोमिनेंस फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे जिसे आप एक्रोमियल प्रोसेस के नाम से जानते हैं, उस बोनी प्रोमिनेंस पे 0 एंगल जो मार्कर है उस मार्कर को आपको रखना है। देन वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हुए आपको एल्बो रीजन में यहाँ पे आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फाइंड आउट करना होगा, जिसे हम ओलिक्रोनिक प्रोसेस बोलते हैं। उस ओलिक्रोनिक प्रोसेस तक आपको वर्टिकली स्टेप को लेना है। देन यू हैव टू, द थर्ड स्टेप इज, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्म। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे एरो से दे सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्म. In that point, we have to mark it with pen, pencil or स्केच पेन, जो भी आपके पास में अवेलेबल है, उस पेन पेंसिल स्केच से आपको वहां पे मार्किंग करनी है। ओके, तो मेनली 3 स्टेप इसके अंदर, स्टार्टिंग फर्स्ट पेज के अंदर 3 स्टेप्स हैं, जिनके अंदर फर्स्ट आपको जो हैंड है उसको, लेफ्ट हैंड को 90 डिग्री एंगल पे रखना है, एल्बो से बेंड करते हुए। देन आपको टेप को वर्टिकली लेना है, जिसमें आपको एक्रोमियल प्रोसेस और एलिक्रोनिक प्रोसेस के अंदर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद थर्ड स्टेप है जिसका आपको सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। सेंटर पॉइंट को आपको मार्क करना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, कीप द पेशेंट्स आर्म हैंगिंग स्ट्रेट डाउन, क्योंकि आपने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। देन आपको जो आर्म है उसको आपको हैंग करने के लिए बोलना है पेशेंट क्लाइंट को, hanging straight down to the start measuring place. Then start the measuring place, the head of the mid upper arm circumference tape toward the right hand direction as shown in the image. पहले आपने क्या किया था, वर्टिकल लिया था फ्रॉम एक्रोमियल प्रोसेस से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट डायरेक्शन के अंदर हैंड होगा वो हैंगिंग डायरेक्शन हैंगिंग होगा, और जो टेप होगी आपकी राइट डायरेक्शन के टुवर्ड्स जाएगी। राइट डायरेक्शन के टुवर्ड्स जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप्स आपकी क्या है, wrap the mid upper arm circumference tail around the arm above the marked midpoint of the arm. Then insert the tail of mid upper arm circumference tape through the slit in the head of the mid upper arm circumference tape is shown in the image। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको उसको रेप करने के बाद में जो उसकी टेल है उस टेल को यहाँ सॉकेट से लेंगे, और सॉकेट से लेने के बाद में यहाँ पे जो मार्किंग 0 मार्किंग, जो मैंने आपको एरो बोला है, 2 एरो दिख रहे हैं, वो 0 मार्किंग। 0 मार्किंग पे जो भी रीडिंग आपको मिलती है, दैट रीडिंग विल बी योर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है। अब आप जब रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेने के टाइम पे आपको क्या करना है, उस टेप को ना तो ज्यादा, ये जो टेल पोर्शन है उसको ना तो ज्यादा टाइटली खींचना है, ना ही उसको लूज रखना है। नॉर्मली उसको आपको रेप करना है। रेप करने के बाद में जो 0 एंगल है, 0 एंगल पे जो भी आपकी रीडिंग आती है, वो रीडिंग आपकी क्या होगी, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होगी। ओके, so like that we can measure mid upper arm circumference. Next we will see how to interpret the reading. For interpretation, we have to follow this table. If the mid upper arm circumference is between 13.5 to 18 centimeter, it means the growth and development of baby is normal. Okay. If the mid upper arm circumference is less than 13.5 centimeter, it means we will consider it malnourishment. Okay. और अगर जो उसकी रेंज 12.5 से लेके 13.4 तक आता है, it means it is a mild malnourishment. If the range is between 11 to 12.4, it means moderate malnourishment. If the range is between less than 10.9 centimeter, it means severe malnourished. If the reading is more than 18 centimeter, it means we can consider it overnourishment. So it was all about the mid upper arm circumference. Next, we will discuss about measurement of weight.
For measurement of weight, first we need the instrument, and there are many types of instrument. With the help of that we can measure the weight, जिसमें कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसे ट्यूबुलर सॉल्टर बोलते हैं या फिर स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं. Then next is electronic digital weighing machine, then dial solder. Okay, so with the help of these all we can measure the body weight. While measuring the body weight, that time there are some points that we have to keep in mind. So यहाँ पे next we will discuss about the responsibilities of nurse in measuring the body weight. The first, if suppose if we are measuring the body weight with the help of weighing machine, that time first we have to see a digital weighing machine kept on लेवल ग्राउंड. अब लेवल ग्राउंड पे रखने की जरूरत है. सपोज अगर आप ग्राउंड लेवल नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा रीडिंग के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आने की जरूरत चेंजेस आ सकते हैं. इसलिए वी हैव टू ऑलवेज कीप द मशीन ऑन ग्राउंड लेवल. देन digital weighing machine should be activated and it should be show 0.00 रीडिंग. अगर बाई चांस वो 0.0 नहीं आती है तो वी हैव टू कंसिडर दैट पॉइंट एज अ जीरो, और जितना डिफरेंस है जीरो से उस पॉइंट को at the end after taking the reading we can consider it, but ideally we should always keep the reading on 0.00 reading point. Then every day before the survey begins, digital weighing machine is to be checked for accuracy. Accuracy is one of the most important factor while we check the body weight. अभी क्यों जरूरी, सपोज अगर एक्यूरेसी नहीं है, आप वेइंग मशीन चेक कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है और उसके अंदर एरर है, और उस एरर को अगर आप सपोज कंसिडर नहीं करते हैं, देन आप जो बॉडी वेट मेजर करते हैं उस बॉडी वेट को मेजर करने के बाद में यू कैन फाइंड आउट द बीएमआई. अगर किसी मालनरिश चिल्ड्रन, अगर सपोज बीएमआई की आपकी कैलकुलेशन एट देन आपकी जो कैलकुलेशन आती है वो कैलकुलेशन के बाद में सपोज आप किसी चिल्ड्रन को अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन एग्जैक्टली और वो आना चाहिए था नॉर्मल कैटेगरी में या फिर मालनरिश कैटेगरी में, बट ड्यू टू द इनएक्यूरेसी ऑफ वेइंग मशीन और कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आया, कैलकुलेशन में मिस्टेक आने के बाद जो फाइनल कैलकुलेशन है वो नॉर्मल कैटेगरी की आ रही है, तो मालनरिश से हटके वो बेबी चला जाएगा नॉर्मल कैटेगरी में, और हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन हमें उसको पे करना चाहिए था फॉर मालनरिश ट्रीटमेंट ऑफ मालनरिशमेंट के लिए, तो उससे हम डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि हम तब उसको नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली वो मालनरिश है लेकिन हमने उसको नॉर्मल कैटेगरी में डाला, और नॉर्मल कैटेगरी में हमने कौन से बेसिस पे डाला, हमारी कैलकुलेशन बेसिस पे, और वो कैलकुलेशन में चेंजेस आने का जो मेन कारण है वो क्या है, इनएक्यूरेसी. That's why to prevent that this type of error we have to always check the accuracy of the weighing machine. और वो accuracy को कैसे हम चेक कर सकते हैं, first we have to check the weight on weighing machine, और उसके लिए क्या करना होगा, we have to take standard weight, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे हमने 5 kg का वेट लिया है. आफ्टर टेकिंग द वेट वी हैव टू चेक द वेट ऑफ दैट वेट, जिसको आप बाट के नाम से भी जानते हैं, बाट या भार या फिर वेट, जो भी जिस भी टर्म में आप उसको बोलते हैं उसको आपको चेक करना है. तो जो उसका स्टैंडर्ड वेट है दैट शुड बी रिफ्लेक्ट ऑन वेइंग मशीन. सपोज यहाँ पे 5 kg और हमें मशीन पे भी वो 5 kg आना चाहिए. सपोज अगर मशीन पे 5 kg नहीं आ रहा, 5.9 आ रहा है, 4.9 आ रहा है, इट मीन्स जो हमारी मशीन है उस मशीन के अंदर 100 ग्राम की क्या है, एरर. तो वो 100 ग्राम के एरर के बारे में हमको पता चलेगा जब हम वेइंग मशीन पे उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे. देन स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे 5 kg प्लस 2 kg 1 kg 0.5 kg 0.1 kg का वेट लिया है, और वेट लेने के बाद में जो टोटल वेट है इट शुड बी अराउंड 8.6 kg. अगर सपोज वो 8.6 kg के बाद में अगर कुछ डिफरेंस आता तो वो डिफरेंस होगा वो हमारे क्या होगा, एरर होगा. देन दिस वेट मशीन विल बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेट विद 100 ग्राम ऑफ एक्यूरेसी. Okay, the weight of infant and young children who cannot or will not stand on the digital weighing machine, they will be computed by finding out the difference in weight between the weight of mother caregiver when she is carrying the child in her own weight. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर सपोज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर बच्चा खड़ा नहीं रहता तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द वेट ऑफ मदर, then we have to give baby to the mother, then we have to check the weight of mother and baby, दोनों का हमें साथ में लेना, लेने के बाद में दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होगा दैट वी विल फाइंड आउट, और जो डिफरेंस होगा वो बेबी का वेट होगा.
जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव टू टेल द बेबी टू स्टैंड ऑन वेइंग मशीन। तो जो आपका वेट है, यहाँ पे वेट देख सकते हैं 12.3 kg। तो मीन स्टैंडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग मशीन विद सारी, थोड़ा सा हमें ऊपर उसे हल्का सा ऊपर लिफ्ट करने के लिए बोलना है, बिकॉज इजीली जो रीडिंग पॉइंट है उसको हम इजीली वी कैन सी। नेक्स्ट इज हाइट मेजरमेंट। The equipment required for the measurement of height, that is either you can take measuring tape or height measuring scale। तो height measuring scale लेने के बाद में अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, हमें उसे 0 पॉइंट पे लाना होता है। 0 पॉइंट लाने के बाद में देन वी हैव टू फिक्स ऑन अ वॉल। और फॉर इन्फेंट चिल्ड्रन के लिए देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड इन्फेंटोमीटर। विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर द height of infant children। Measuring the length in infant and young children, baby should be kept on infantometer। एंड अब जब हम इन्फेंटोमीटर में बेबी की हाइट चेक करते हैं तो देयर शुड बी सम पॉइंट वी शुड ऑलवेज कीप इट इन माइंड। बेबी का जो हेड है, हेड शुड बी टच करेक्टली अगेंस्ट द हेड बोर्ड एंड द फीट शुड बी पोजिशंस वर्टिकली अगेंस्ट द फुट बोर्ड। ठीक है, एंड उनको रखने के बाद में हेड बोर्ड और फुट बोर्ड को, हेड बोर्ड शुड बी टच विद द हेड एंड फुट बोर्ड शुड बी टच विद द फुट। और उसको दोनों को टच करने के बाद में वी हैव टू रिमूव द बेबी, और उसके बाद में जो मेजरमेंट है दैट वी हैव टू चेक। समटाइम क्या होता है कि बेबी के जो हेड हैज बीन पोजीशन एंड नीज आर स्ट्रेंथेंड, द बेबी हैज स्लाइटली bowed leg indicated by the arrow। This is the normal in young babies and cannot be। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यह है कि जो बेबी के जो फुट है, जो हील है, इट शुड बी टच ऑन द फुटबोर्ड। अगर वो टच नहीं होगी तो जो स्पेस होगा हील और फुटबोर्ड के बीच में, वो आपका एरर होता है। तो मीन्स एट द एंड जितना स्पेस यहाँ पे उतना आपका एरर आएगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि बेबी के जो कम्प्लीटली फुट हैं, जो फिंगर से लेके जो हिल पोर्शन तक है, जितने भी पार्ट है फुट का, वो सभी, वो सारे पार्ट आपके फुटबोर्ड पे टच होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेड पार्ट, हेड को हेड बोर्ड से और फुट को फुटबोर्ड से टच करने के बाद में एट द एंड आप बेबी की जो लेंथ है उस लेंथ को यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 60.5 और देन 3 60.8 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 16.8 है वो आपकी बेबी की लेंथ होगी। The measuring the height in children and adult, उसके लिए यहाँ पे there should be some point you should always keep it in your mind। First child should be stand straight। और यहाँ पे जो सबसे important part है, कौन कौन से ऐसे body part होते हैं that should be touched with the wall। It include heels, knees, buttock, back, shoulder, back of the head should be touched the wall। जब हम वेट चेक करते हैं that time we should tell the adult or children to look straight। और जब हेड पे वो हाइट मेजरिंग स्केल का बोर्ड वो टच हो जाता है, देन वी विल टेल द चिल्ड्रन और एडल्ट, उन्हें हम बोलेंगे कि वहां से हटने के लिए बोलेंगे। देन वी विल मेजर द रीडिंग ऑफ लेंथ। आफ्टर टेकिंग द हाइट एंड वेट we will calculate BMI। The formula for BMI calculation is weight in kg divided by height in meter square। After taking the weight and height, we will check the BMI। और BMI calculation करने के बाद में according to the WHO guideline we will consider whether baby is underweight or overweight, obese, कौन सी category में baby है। If the BMI is between 18.5 to 22.9, then we will consider that baby is normal। If the BMI is less than 18.5, that time we will consider it malnourishment। or if the BMI is more than 22.9, it means baby is overweight। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं if the BMI less than 16, it means severe underweight। If the BMI is between 16 to 69, it means moderate underweight। If the BMI is 17 to 18.4, it means mild underweight। If the BMI is 23 to 27.4, it means
overweight. If the BMI is 27.5 to 32.4, it means obese 1. If the BMI is 13 to 37.4, it means obese 2. If the BMI is more than 37.5, it means obese 3 category. So today we discuss about anthropometric measurement. In this video we discuss about measuring of height, measuring of weight, measuring of head circumference, measuring of chest circumference, and measurement of mid upper arm circumference. So it was all about the anthropometric measurement. Thank you so much.